हाय ऑल। सो एक ऐसा क्वेश्चन जिसने जेई एडवांस 2019 एस्पिरेंट्स या जिन बच्चों ने जेई एडवांस 2019 लिखा था उनके होश उड़ा दिए। सो आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन जेई एडवांस 2019, ऑलमोस्ट 1,60,000, 1,12,733 स्टूडेंट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट 70% of the students did not attempt this question. And those who attempted, only 8% of those were able to mark the correct answer. So guys, है ना ये कमाल की चीज? So this is regarded as one of the most difficult questions of the recent times in JEE Advanced. And again, क्वेश्चन देखने से इतना इतना टफ था नहीं, just that it seemed to be a lengthier problem, and that is why that may be the reason a lot of students actually left it in their examination. So let us look at the problem, guys. So the problem is this: if M is a matrix sine to the power 4 theta minus 1 minus sine square theta 1 plus cos square theta cos to the power 4 theta is alpha I plus beta M inverse, where alpha is a function of theta and beta is also a function of theta, are real numbers, and I is an identity matrix, ये identity matrix है, and alpha to the power x or alpha x is the minimum of the set alpha theta. तो alpha theta का minimum value alpha x है, where theta belongs to 0 to 2 pi, and beta x is the minimum of the set beta theta. ठीक है, so beta x is the minimum value of this and alpha x is the minimum value of this, and we have to find the sum of the minimum values of these two sets. So this was the question, and these are the options: minus 37 by 16, minus 31 by 16, minus 29 by 16, minus 17 by 16. तो बच्चों एक काम करते हैं, जिन जिन बच्चों ने मेट्रिसेस पढ़ा हुआ है, let me ask them to pause this video right away and try this question. Spend some time, be it 5 minutes, be it 10 minutes, 15 minutes, but spend some time and तब तक ट्राई करो जब तक कोई आगे आगे कुछ दीवार नहीं लग जाती या हार्ड स्टॉप नहीं लग जाता कि यार इसके बाद तो नहीं हो रहा। उसके बिना रुको मत, एंड ये सोल्यूशन उसके बाद देखना जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, राइट? ओके, सो गाइज, हाउ डू वी सॉल्व दिस? हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो क्या करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं साइन को s लिख रहा हूँ एंड कॉस को मैं c लिख रहा हूँ। सो m मतलब कि साइन 4 यहां पर आएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर cos 4 c4 is equal to alpha I. So alpha I would be alpha 0 0 alpha, right? Plus beta m inverse. Now m inverse हमें सबको पता है that is 1 upon determinant of m into adjoint of m. So this is 1 upon determinant of m, and बचे adjoint of a 2 by 2 matrix. अगर मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊं, अगर एक मैट्रिक्स A B C D है which is say मैट्रिक्स A, तो इसका adjoint इस क्या होता है, डी और ए एक्सचेंज हो जाते हैं, सो दिस बिकम्स डी, यहाँ पर ए आ जाएगा एंड इन दोनों में माइनस साइन लग जाएगा, सो माइनस बी माइनस सी। सो दिस इज अ डायरेक्ट, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एडजॉइंट है, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। सो वन बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एम, सो इट विल बी C4 एंड यहाँ पर S4, ये मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा ये वाला एलिमेंट, सो इट विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस S स्क्वायर एंड -1 माइनस C स्क्वायर -1 minus c square. So this is the matrix equation that we have, and let us try to equate both the sides. So can I say sine 4 is equal to alpha plus beta upon determinant of m, beta upon determinant of m into cos 4. So this is one relation in alpha and beta. The second relation would be इसको compare करते हैं, so minus of 1 plus sine square will be equal to, this is 0 plus beta upon determinant of m into 1 plus sine square. So this seems a bit easy. This seems a bit easy. Second equation थोड़ा सा easy लग रहा है, because 1 plus sine square cannot be 0. So that means beta is equal to minus of determinant of m. So beta का वैल्यू तो आ गया, because determinant of m we can find out. Determinant of m we can find out. In fact, find कर ही लेते हैं. So determinant of m is sine 4 cos 4 minus of this into this. So it will be plus of 1 plus sine square into 1 plus cos square. 1 plus cos square. So beta क्या है? नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, इसका नेगेटिव और इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना। ठीक है, तो हम बाद में देखते हैं इसको। अल्फा पे आते हैं।
अगर बच्चे बीटा अपॉन माइनस मॉड ऑफ एम या डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज -1, अगर ये वाला वैल्यू -1 है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू बिकम्स sin 4 प्लस cos 4. Alpha becomes sin 4 plus cos 4. So now we have both the functions. So alpha का वैल्यू भी पता है और बीटा का वैल्यू भी पता है. Now we have to concentrate on finding the minimum value of alpha and beta. Alpha और बीटा का minimum value निकालने का कोशिश करना. Let us try and do this. So guys, alpha का वैल्यू जैसे कि हमने निकाला था, alpha का वैल्यू is sin 4 plus cos 4. अब sin 4 प्लस cos 4 का मिनिमम वैल्यू बताना, अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड दिस आउट. सो मेरा बेस्ट तरीका क्या होता है? sin 4 प्लस cos 4 इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर. ये याद रखना है बच्चे. वे टू इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो कि हमेशा याद रखने हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं. वन इज sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा. दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर. एंड sin 6 प्लस cos 6 इज 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर. So 1 minus 2 sin square cos square. And guys, यहां पर क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, बिकॉज 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 1 minus 1 by 2 sin square 2 थीटा. 1 minus 1 by 2 sin square 2 थीटा. तो अगर अल्फा का वैल्यू क्या क्या? 1 minus 1 by 2, अल्फा इज 1 minus 1 by 2 sin square 2 थीटा. एंड हमें फाइंड करना मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा. वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा का मिनिमम वैल्यू. नाउ अल्फा का मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन sin स्क्वायर 2 थीटा इज मैक्सिमम, बिकॉज नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है. वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अल्फा मिनिमम कब होगा? जो सब्ट्रैक्ट वाली चीज है ना वो मैक्सिमम हो, बिकॉज सब्ट्रैक्ट वाली चीज पॉजिटिव है. तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम कब हो सकता है? ऑब्वियसली 1 पे. सो कहने से अल्फा एक्स इज 1 माइनस हाफ विच इज हाफ. सो अल्फा एक्स का वैल्यू तो क्लियर है बॉस. अल्फा एक्स का वैल्यू क्लियर है. पूरा का पूरा स्ट्रेंथ हमें बीटा एक्स पे लगाना है. बीटा एक्स इज नथिंग बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट. बीटा एक्स इज मिनिमम वैल्यू ऑफ बी ऑफ थीटा. नाउ व्हाट इज बी ऑफ थीटा? बी ऑफ थीटा जैसे कि हमने फाइंड किया था पिछली स्लाइड में, बी ऑफ थीटा इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम. सो माइनस ऑफ दिस. सो माइनस ऑफ sin 4 cos 4 माइनस ऑफ sin 4 cos 4 प्लस 1 plus sin square into 1 plus cos square. So this is beta of theta. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. So this is negative of sin 4 cos 4 plus 1 plus sin square plus cos square is 1 plus sin square cos square. Sin square cos square. So guys, this is also a quadratic in sin square cos square. So this is sin square cos square का whole square plus sin square cos square plus 2. Now can I try and complete the square? Because quadratic में एक सिंपल सी चीज है यार. quadratic को कभी भी एनालाइज करना है और आसान तरीके से एनालाइज करना है. जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर. सिंपल. तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो इसका हाफ कर दिया, मतलब कि 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर plus 1/2 का whole square. So this is 1 plus 2 minus 1/4. This will be 7/4. This will be 7/4. So this is beta of theta. So beta of theta का value ये है. Now I need to minimize this. इसको minimum करना है. अब समझो यार, पहले sin square theta cos square theta को एनालाइज करते हैं. Now sin square theta cos square theta is nothing but this is 1/4 से मल्टीप्लाई, 1/4 से 4 से डिवाइड, 1/4. दिस इज sin square 2 theta. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एनालाइज कर रहे हैं. तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. इट इज वेरी क्लियर. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सो साइन h स्क्वायर c स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इट विल बी 1/4 एंड मिनिमम वैल्यू इट विल बी 0. तो ये जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, दिस वैल्यू एक मिनट. ओके, मूविंग ऑन. सो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है और मिनिमम वैल्यू 0 है. मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताना ओवरऑल. बीटा ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू बताना ओवरऑल. सो बीटा ऑफ थीटा इज नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव ऑफ ये पॉजिटिव वैल्यू,
सो कोई मुझे सोच के बता सकता है व्हेन विल बीटा थीटा बी मिनिमम? सो बीटा ऑफ थीटा विल बी मिनिमम कब होगा? कैन आई से ये मिनिमम कब होगा? जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हो, बिकॉज ये अंदर वाला ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हो कर लो, 7/4 ऐड कर लो, ओवरऑल तो नेगेटिव ही होना है, ओवरऑल तो नेगेटिव ही होना है। तो बीटा का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ये वाली चीज, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सबसे मिनिमम, या ब्रैकेट वाली चीज, ये ब्रैकेट का स्क्वायर सबसे मैक्सिमम, ब्रैकेट का स्क्वायर सबसे मैक्सिमम हो, बिकॉज ओवरऑल नेगेटिव होना है। Right, so beta of theta will be minimum when sin square cos square will be 1/4. So beta theta या beta x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/4 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4 प्लस 7/4, एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस, ये क्या हो जाएगा? 2/4, 1/2 is 2/4, yes, so it will be 2/4, so this will be 3/4. So 3/4 का whole square will be 9/16. So 9/16 plus 7/4. 7/4 means 28/16. So this will be 39/16 with a negative sign. So this will be minus of, this will be minus of 39/16. So beta x का वैल्यू है minus 39/16. And alpha x plus beta x का वैल्यू will be 1/2 minus 39/16, और ये हम कैलकुलेट करके अगर सॉल्व करेंगे 16, 8 minus 39, 8 minus 39, सॉरी minus 39/16 इज इट, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 37/16, सॉरी 37/16, 37/16. So 8 minus 37 is minus 29/16. So minus 29/16 would be the correct answer. Minus 29/16 would be the correct answer to this one. I hope this is clear. Right. So again, guys, it was very understandable that 70% of the students who attempted JEE Advanced did not attempt this question, because हमें दिख गया है कि इसका कितने ज्यादा concepts involved है. So one was matrix. The second was inverse. Inverse को किस तरीके से लिखते हैं. The third was finding the maximum value and minimum value. So again, use of trigonometry, and again काफी हद तक use of quadratic equation also. So again, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है, मेट्रिसेस के काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, एंड quadratic equation के concepts. So multi-conceptual question, because it has more than 3 concepts, and it was very understandable that most of the students did not attempt this, and it was actually a right decision, because जिस तरीके से तुमने ये question solve मेरे को करते हुए देखा है, और देखा है कि कितना ज्यादा टाइम लिया है इस क्वेश्चन ने. So again, it was worth skipping this question. Again, इस क्वेश्चन पे वापस तभी आया जाना बनता था अगर सब कुछ कर लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और लास्ट में बहुत सारा टाइम बचा है और कुछ नहीं आ सकता, चीटिंग नहीं हो सकती, तो इस क्वेश्चन पे वापस आना बनता था, राइट. सो अदरवाइज इट वाज द क्वेश्चन व्हिच हैड टू बी स्किप्ड. एंड गाइस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वी नीड टू लर्न टू स्किप द क्वेश्चंस. उसकी आदत डालनी है. सो वी नीड टू नो विच क्वेश्चंस टू डू एंड विच क्वेश्चंस नॉट टू डू. ठीक है. सो 70% में से आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, स्पेशली टॉपर्स, जिन्होंने इस क्वेश्चन स्किप किया होगा, टाइम भी नहीं लगाया होगा, बिकॉज उनको देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन शायद बन जाए, बट जितना टाइम इसके अंदर लगेगा उसके बेसिस पे हो सकता है कि 3 या 4 या 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाए, राइट. सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट. एंड जिन बच्चों ने नहीं बहुत सारा टाइम लगाया होगा एंड लास्ट में नहीं किया होगा, अगेन वो भी 70% में आते हैं. एंड द फैक्ट दैट दिस वाज डन करेक्टली ओनली बाय 8% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो दिस टेल्स द डिफिकल्टी लेवल, एंड नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्टी लेवल, मैं डिफिकल्टी तो नहीं बोलूंगा, बट यस, टाइम कंज्यूमिंग. तो एक ऐसे पेपर में जो टाइम बाउंडेड है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, और बहुत बड़ा फैक्टर था ये, दैट बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया. सो हाउ डिड यू लाइक द क्वेश्चन? डू राइट मी ऑन द कमेंट्स, एंड इस तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे. सीरीज का नाम है जेई क्लासेस, इसके अंदर क्लासिक जेई प्रॉब्लम्स, समटाइम्स प्रीवियस ईयर, समटाइम्स नॉट प्रीवियस ईयर, बट वेरी रिलेटेड टू जेई, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट. सो ऑप्शन 4 वाज करेक्ट. अल्फा एक्स का मिनिमम वैल्यू हाफ है, बीटा एक्स का मिनिमम वैल्यू -37/16, और कब होगा? जब टी का वैल्यू या साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1/4 होगा, right. So this was how it had to be done. I hope you liked the question, liked the video.
सो गाइज, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल बी बैक with these kind of videos very soon. Take care. Happy learning.